और जो जितनी भी CO2 है वो बाहर से डिफ्यूज होके कहाँ पे आ जाएगी, इट विल कम इनसाइड द प्लांट सेल. ओके, and which type of plant cell is involved for photosynthesis? Can you name that plant cell which is involved for the process of photosynthesis, which is involved in the process of photosynthesis? Yes, students. Yes. Plastids. Plastids are not a cell. Plastids Chlorophyll. are cell organelles. Chloroplast. Organelles. I am Chloroplast. huh? Chloroplast. Chloroplast is again a plastid. I am asking you the name of the cell where the process of Chlorophyll. photosynthesis is taking place. Okay. Chlorophyll. Chlorophyll is the pigment. Mitochondria. नहीं. Mesophyll cells of the leaves. Yes. Mesophyll cells of the leaves. Yes, ये right है. It is the mesophyll cells of the leaf. ठीक है ना? Okay. तो ये पता नहीं, ये ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे, क्लास 10 में ये वर्ड था, लेकिन वहाँ बताते हम जरूर है जब भी अपनी क्लास लेते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली द सेल प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द सेल्स व्हिच हैव क्लोरोफिल इन इट दे आर नोन एज द मेसोफिल सेल्स. और ये आपको एक क्लास में मैंने बताया भी था. ठीक है. सो द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, द सेल्स व्हिच हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इन इट, they are known as mesophyll cells, or you can call the mesophyll cells as the cells in which the process of photosynthesis is taking place. Suppose करो कि हम एक सेल एक तरह का जैसे नॉर्मल एक सेल बना रहे हैं, उस सेल में क्लोरोफिल का पिगमेंट है. यहाँ पे क्लोरोफिल का क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट. Since chlorophyll pigment is present, therefore this chlorophyll pigment has the ability to absorb the solar energy and convert it into the chemical energy of the food. Okay, so all that chlorophyll bearing cells where the process of photosynthesis occur, they are named as mesophyll cells. ठीक है ना. तो अब क्या हुआ कि जो CO2 बाहर से आना है वो स्टोमेटा के हेल्प से सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा. और कौन से सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा, मेसोफिल सेल्स में. ठीक है ना. मेसोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. और ये क्लोरोफिल पिगमेंट एक तरह के किसमें प्रेजेंट है, प्लास्टिड में प्रेजेंट है, विच इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट. इस सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और क्लोरोप्लास्ट विल हेल्प इन कैप्चरिंग द सोलर एनर्जी रेडिएशन. ठीक है ना. उसके पास वो एबिलिटी, और वो एबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट प्रेजेंट हैं. ठीक है ना. ओके, इतना हुआ हमारा. तो यहाँ पे वी न्यू दैट CO2 का सोर्स क्या हुआ. ओके, नाउ लेट अस सी द सोर्स ऑफ H2O. What will be the source of H2O? Where from the plant will get H2O? प्लांट को H2O कहाँ से मिलेगा? यस बच्चों. Moisture from the environment as well as the soil. क्या? Moisture from surrounding as well as the soil. Moisture from soil. Okay, means the plant will get water through the roots. Okay, and you all know that which type of which type of vessel help the plant to absorb the water or moisture? That is xylem. Okay, so through the pipes of xylem or the tubes of xylem, the water will reach the mesophyll cell. mesophyll cell में water आ गया, CO2 डिफ्यूज हो चुकी है स्टोमेटा से. सनलाइट कौन कैप्चर करेगा, सनलाइट कैप्चर करेगा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल. और मेसोफिल सेल्स के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी और H2O बनेगा. ठीक है. नाउ द ऑक्सीजन विच इज रिलीज, इट विल गो आउट, इट विल डिफ्यूज आउट ऑफ द मेसोफिल सेल again by the process of diffusion. Okay, so by the process of diffusion this O2 will go out of the mesophyll cell. Why? Because the concentration of oxygen is higher in mesophyll cell as compared to outside. So oxygen will move from a region of higher concentration to a region of lower concentration, और इस वजह से सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी. Now this becomes the source. ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, this is the main source of oxygen from where we are getting oxygen. हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से मिल रही है. ठीक है ना. अगर प्लांट्स नहीं होते then we won't be able to get oxygen. हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 21% है. तो ये जो 21% ऑक्सीजन है, इसके लिए मेजर सोर्स क्या है,
प्लांट से। अगर प्लांट्स नहीं होते तो ये जो ऑक्सीजन का सोर्स, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है यहाँ पे परसेंटेज है, ये इतनी नहीं होती, इससे लेस होती। ओके, व्हाट हैपेंस इफ वी इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्रॉम 21 to 50, व्हाट विल हैपन ऑन अर्थ? अगर अर्थ पे हमने 21% ऑक्सीजन से बढ़ा के 50% कर दिया, देन व्हाट इफेक्ट द अर्थ विल हैव? मैम ट्रीज सूख जाएंगे शायद, ट्रीज को CO2 कम मिलेगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने CO2 को कम किया है। I am asking you, see the concentration of CO2 suppose remains same, and the concentration of O2 has been increased in the environment. What effect it will do? A lot of harmful bacteria will form. क्या? Another? Harmful bacteria will form. कुछ बैक्टीरिया बन जाएंगे और कुछ एक बहुत बड़ा वो होगा जिसके वजह से there is a reason why the percentage of oxygen is 21%. उससे ज्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? उससे अगर ज्यादा बढ़ेगा फॉरेस्ट फायर वगैरह जल्दी हो सकता है। क्या हो जाएगा? मैम अगर फॉरेस्ट फायर, हाँ, वेरी नाइस, फॉरेस्ट अगर O2 ज्यादा बढ़ जाएगा तो फायर बॉल बन जाएगी प्लैनेट, फायर बॉल बन जाएगी, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, एवरीथिंग विल बर्न। ओके, इसीलिए जो 21% हमें देखने में तो कम है कि ऑक्सीजन 21% है, बट इतना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है देन इट विल एवरीथिंग विल ऑक्सीडाइज। ओके, एंड एक छोटी सी भी मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर है वो सबका जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और थोड़ा सा भी सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा और हर चीज को आग लग जाएगी या फायर लग जाएगी। ठीक है ना, इसलिए उतना परसेंटेज इज सफिशिएंट एंड द मेजर रोल फॉर दिस 21% ऑफ ऑक्सीजन इज प्लेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो ये तो एक बेसिकली जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ था, बस उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, okay, now on page number 207 you will find a figure 13.1. okay, so 13.1 में जोसेफ प्रेस्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट ऑफ द जो एक इन्वर्टेड जार है दैट इज एक्चुअली अ ग्लास जार। ठीक है, और जो जब उसको इन्वर्टेड रख देंगे इट मीन्स कि देयर इज नो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन from the downward sides. Okay, so this experiment was done by Joseph Priestley. Okay, now many experiments were done by many scientists to get to this conclusion or to form this equation. ये इक्वेशन को बनाना इतना आसान नहीं था कि हमें पता है। अब ये हमें कहाँ से पता चला कि CO2 यूज हो रहा है, ये H2O यूज हो रहा है, ये ऑक्सीजन निकल रहा है? हर एक स्टेप के लिए एक एक एक्सपेरिमेंट रेस्पॉन्सिबल है विच हैज लेड टू द नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेज हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। तो अब तक जो आप एक पैराग्राफ पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस, यहाँ ये कॉम्प्लिकेटेड एक लेसन है पूरा, और बहुत मतलब आप पहली बार पढ़ोगे तो हार्ड ही है आपके लिए, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ही ये याद होगा। ठीक है ना, तो अब ये बहुत हम इसको फोटोसिंथेसिस ये नहीं मान सकते कि फोटोसिंथेसिस में लिखने के लिए आ जाए तो हम एक पैराग्राफ करेंगे, वो 10 तक चलता था। यहाँ पे आपको पूरा लेसन पढ़ना है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। ओके, देयर आर मेनी एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड, देयर आर मेनी प्रोसेस, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आपको फोटोसिंथेसिस में लर्न करने हैं। तो यहाँ पे जैसे जोसेफ प्रिस्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने दे हैव डन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू शो दैट how substances are formed to form a next substance। ठीक है ना, एक सब्सटेंस यूज होता है तो दूसरा सब्सटेंस कैसे बनता है। हमने ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे ये पता चला दैट CO2 इज used for photosynthesis and water is also used for photosynthesis. Then जब प्लांट के ऊपर एक पॉलिथीन लगाई गई और प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने दिया गया तो ये देखा गया कि उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी बन गई, तो उससे ये पता चला कि ना ये प्लांट्स तो ये तो वाटर भी रिलीज करते हैं। ठीक है ना, ओके, एंड वहाँ पे एक बर्निंग कैंडल प्लांट्स के पास रखी गई वेयर द प्लांट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखा गया कि जो बर्निंग कैंडल है वो तो बर्न हो रही है इजीली, मींस इट इज गेटिंग ऑक्सीजन। ओके, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो, केवल प्लांट्स के पास एक बर्निंग कैंडल रख दो तो बर्निंग कैंडल बस जलती रहेगी, इट मींस द प्लांट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इस तरह से करके छोटे छोटे स्टेप्स में, मल्टी स्टेप्स में ये सारी इक्वेशन हमें निकली, मतलब पता लगी कि कैसे प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। सो विल लर्न देम। ओके, सो ये जो अलग अलग साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिए थे ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपको आपके जो नोट्स है वो शेयर कर दूंगी मैं, तो उसमें से देख लेना और पढ़ लेना। यहाँ पे ये फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्ली का, वो जरूर बता देती हूँ। तो इसमें फर्स्ट में एक बेल जार आप देख रहे हो, देयर इज अ माइस, a candle is burning,
So initially the candle is burning because initial amount of or small amount of oxygen is there in the bell jar. So the oxygen is utilized by both mice and the candle. Okay. After some time, since oxygen is not coming inside the bell jar, therefore the inverted bell jar, therefore the candle will extinguish. जहाँ से ये पता चला कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वहीं से जब माइस की डेथ हो जाती है तो उससे ये भी पता चला कि माइस को भी ऑक्सीजन चाहिए थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया, उसमें क्या किया गया, इस टाइम पे जोसेफ प्रेस्ली ने एक चेंज किया एंड द सेम एक्सपेरिमेंट में क्या किया, he has placed one potted plant in the jar, okay, and he has kept a mice and a candle, okay। अब इसमें क्या हुआ कि plants तो ले रहे थे CO2 एनवायरमेंट में, मतलब जब बेल जार में जो इनिशियल अमाउंट ऑफ CO2 है वो किसने यूज करी, प्लांट ने परफॉर्म किया फोटोसिंथेसिस, प्लांट लिबरेटेड ऑक्सीजन एंड द कैंडल रिमेन्ड बर्निंग। कैंडल तो जलती रही, तो पहले तो बुझ गई थी लेकिन अभी जलती रह गई। इसका मतलब ये हुआ दैट सम गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट व्हिच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द कैंडल एंड द माइस आल्सो रिमेन अलाइव। इट मींस द सेम गैस इज यूज्ड बाय द माइस आल्सो, ओके। एंड हाउ द प्लांट इज अलाइव, बिकॉज when burning releases a gas which is CO2, that CO2 is utilized by the plant, okay। तो इस तरह से करके ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता गया। प्लांट्स ने जो CO2 कंज्यूम करा ये एनवायरमेंट से, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, plant liberated oxygen which is utilized by the candle and the mice, and both mice did the process of respiration and release CO2, and candle did the process of combustion and release CO2, that CO2 is utilized by the plant। so इस तरह के ये एक्सपेरिमेंट्स, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए गए to derive to the conclusion of, to the definition of photosynthesis and to the equation of photosynthesis, okay। Now I am going to share the screen to see more development in the process of photosynthesis, right। Okay students, is the word file visible to you? Yes ma'am। Okay, यस मैम। yes, ये सिम ये Yes, आज ma'am. yes आज PPT नहीं, एक वर्ड फाइल है क्योंकि इसमें लिखने का बहुत सारा था। Okay, so this is your chapter number 13, photosynthesis in higher plants, okay। Now photosynthesis I have already told you, so it's a physiochemical process, okay। At the same time it is an enzyme regulated and anabolic process। Why it is anabolic process? Because here two substances are combining together, the CO2 and this H2O, both are combining together to form what? To form a glucose molecule, okay। So here this this photosynthesis definition, it involves the use of CO2 and H2O and the formation of glucose, water and oxygen, okay। so यहाँ पे एक okay, so now we'll come to the ये इसके आगे अगर हम जाएंगे, ये this is the experiment by Joseph Priestley, okay। उसके बाद there are small contribution which are done by many other scientists, you can go through it, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से पढ़ लोगे। यहाँ पे मैं आपको ये बता दें तो ये एंगलमैन का एक TW एंगलमैन ने एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड वो क्या था कि yes, he has illuminated cladophora। cladophora क्या है? cladophora एक algae है, okay। and क्या करा कि जैसे dispersion का आपने phenomenon पढ़ा है ना कि when white light passes through a prism, it gets dispersed into 7 different colors, ठीक है। तो क्या किया कि cladophora एक algae है, उसको grow किया, और जब उसको grow किया उसके सामने एक prism रख दिया so that white light could fall on prism। The prism splitted the white light into 7 different colors and the 7 different colors fall on cladophora, ठीक है। इस तरह का कुछ उन्होंने placement किया। Now what has been seen? Okay, he found that bacteria accumulated in blue and red light।
जो क्लैडोफोरा का एल्गी था उसके अंदर उन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी, वहाँ पे कुछ तो इनिशियली डाले थे और कुछ बाद में ग्रोथ भी देखी, ठीक है। ही फाउंड दैट बैक्टीरियम accumulated in blue and red light of the split spectrum, okay। so उन्होंने ये देखा कि जो ब्लू और रेड लाइट के रीजन थे वहां पे बैक्टीरिया इकट्ठा हुए हैं, और जहां से ये पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस में लाइट होती है, लाइट एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि लाइट में जो है ये अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, okay। so light is composed of wavelengths of different types of light, okay। so जिसमें रेड लाइट आती है, ग्रीन लाइट आता है आपका, और येलो लाइट आती है। सो ये आपको जो रेनबो वाले 7 कलर्स हैं वो आपको इजीली पता है, ठीक है ना। सो इस तरह से करके ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से पढ़ लेना। दिस इज नाउ द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसको भी हम सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें भी बस एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि here the grana is the particular place where the photosynthetic reactions will take place, okay। and the entire set of photosynthetic reactions, they are basically divided into light and dark reactions। ये भी आपको पिछले क्लास में बताया था मैंने सेल वाले चैप्टर में। light reactions are the reactions of photosynthesis which needs light, and dark reaction don't need light, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेना है दे आर कंपोज्ड ऑफ थैलाकॉइड। आपको बताया था ना कि ग्रेना में छोटे छोटे स्टैग्ड वो होते हैं, स्टैग्ड सब्सटेंसेस होते हैं, विच आर स्टैग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज थैलाकॉइड। तो ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, एंड देयरफॉर द ग्रेना इज एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। हियर okay, the membrane system is responsible for synthesizing light energy. एक minute, yes, the membrane system is responsible for synthesizing light energy for the synthesis of ATP and NADPH, okay। this ATP you all know, जैसे ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसी की तरह से ये NADP भी होता है। similarly ATP is what? It's the energy packet of cell. Similarly NADPH is also energy packet of cell, and its full form is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, ठीक है। क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो ये ATP एंड NADPH इन दोनों मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। जैसे अभी तक हमने केवल ग्लूकोज की फॉर्मेशन पढ़ी है, ओके, बट अभी हम आगे यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि ATP और NADPH की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ओके। तो इन दोनों एनर्जी पैकेट्स ऑफ सेल्स की भी फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। नाउ हियर कम्स द लाइट रिएक्शन। द लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रेना। ग्रेना क्यों लिखा है? बिकॉज ग्रेना में क्या प्रेजेंट है? ग्रेना हैज thylakoids, okay। So the reaction in which light energy is absorbed, the light energy is absorbed by grana to synthesize ATP and NADPH is called light reaction. Light, एक मिनट, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए जो फोटोसिंथेसिस में पूरा कंप्लीट प्रोसेस, उसका प्रोसेस कैसे, वो तो अभी मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया। और डेप्थ में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि दैट दिस फोटोसिंथेसिस, द कंप्लीट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन व्हिच आर अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, they are actually divided into 2 sets, okay। one set is known as light reaction and another set of reactions are known as dark reaction, ठीक है। light reaction get its name because light react, all the reactions which are a part of light reaction they need light to perform, ठीक है। अगर light होगी तो ही वो reaction होंगे, if light is not available the reactions will not take place। और light reaction के लिए site क्या होगी? light reaction के लिए जो site होगी that is grana, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थैलाकॉइड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। द सेकेंड वन, जो दूसरा है आपका, द लैटर पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन विच CO2 is reduced to sugar, light is not necessary and is called dark reaction, ठीक है। पहले पार्ट में ATP की सिंथेसिस होती है, NADPH की सिंथेसिस होती है, उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, वो ग्रेना में होता है, ठीक है। ये तो हुआ लाइट रिएक्शन। जो सेकेंड पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट डू नॉट नीड एनी लाइट टू परफॉर्म, ओके, देयरफॉर इट इज नोन एज डार्क रिएक्शन। तो वहां पे होगा क्या? वहां पे होगा ये
कि जो आपका रॉ मटेरियल है CO2, इट विल बी चेंज टू शुगर, ठीक है, CO2 will be changed to sugar, okay, and light is necessary, is not necessary, and it is called dark reaction. तो यहाँ से बेसिकली क्लियर कट डिफरेंस पता चल जाता है कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH की फॉर्मेशन होगी, वो लाइट में प्रेजेंट, लाइट में होगा, उसकी लाइट की प्रेजेंस चाहिए एंड टेक प्लेस इन ग्रेना, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा? डार्क रिएक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, डार्क रिएक्शन को आप अपने नोट्स में लिख लो। डार्क रिएक्शन विल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, ओके, जो मैट्रिक्स पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का वहां पे होगा। इट डोंट नीड लाइट, उसको लाइट नहीं चाहिए। और क्या होगा डार्क रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में जो CO2 हमारा रॉ मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा शुगर, ठीक है। इसको यहाँ पे रेड्यूस्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि CO2 के पास कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है, जबकि आप एक शुगर का मॉलिक्यूल देखोगे वहां पे ऑक्सीजन कितने बन गए हैं? 6, ओके। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन एक और चीज हो गया है कि CO2 में देयर इज नो हाइड्रोजन, वेयर एज जो ग्लूकोज है उसमें हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स है, C6H12O6, ठीक है ना। तो व्हेन ग्लूकोज हैज एडेड, जब इस CO2 में H2 बढ़ गया है, H2 नहीं सॉरी हाइड्रोजन बढ़ जाता है, हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, ठीक है। तो CO2 इज रेड्यूस टू शुगर। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको कि CO2 कैसे रेड्यूस हुआ शुगर में। वापस बता रही हूँ, CO2 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो जब CO2 में हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन और आ जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो जब CO2 के पास ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, वहां पे क्या ऐड हो गया? वहां पे ऐड हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना ऐड हुआ? 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, therefore this is known as reduction। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन 2 था और अब ऑक्सीजन कितना बढ़ गया है? 6, बट ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा है 12, इसीलिए ये रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। एंड लाइट इज नॉट नेसेसरी एंड दिस इज नोन एज डार्क रिएक्शन, ओके। नाउ मैम, हाँ बोलो। मैम NADPH की फुल फॉर्म बता दो एक बार वापस। हाँ, NADPH की फुल फॉर्म लिखो, निकोटिनामाइड। मैं भी बोर्ड पे लिख दूंगी ये जब खत्म होगा ना क्लास, ओके मैम। ठीक है। लास्ट में मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, बोर्ड को शेयर करूंगी ना जब स्क्रीन में, तो वहां पे लिख दूंगी, वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है ना। मुझे याद दिला देना एक बार लास्ट में, ठीक है, ओके। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ओके। सो जो एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी तक तो हमें क्लास 10 तक यही पता था कि भाई वो क्लोरोफिल होता है। Now you will come to know what are the different types of chlorophyll, okay, which are involved. So photosynthetic if we see the photosynthetic pigment, these photosynthetic pigment, there are many photosynthetic pigments. For example, chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, ये सारे के सारे photosynthesis करते हैं, ठीक है। बट इनमें क्लोरोफिल A जो है, क्लोरोफिल A is the primary pigment, ठीक है। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है, उसके अलावा आपके सारे के सारे सेकेंडरी पिगमेंट्स है, दे आर सपोर्टिंग पिगमेंट्स, ओके। मेन वर्क इज डन बाय क्लोरोफिल ए। Okay, now if we see the color which is imparted by the following pigment, so if we see the color, chlorophyll A is imparting bright or blue green color. तो अगर एक लीफ में क्लोरोफिल ए की पिगमेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस लीफ का कलर क्या आएगा? ब्राइट और ब्लू ग्रीन। मतलब जो जितनी भी डार्क कलर की लीव्स होती है वहां पे एक्सेस ऑफ कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल ए, ठीक है। देन कमिंग टू क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी में जो आपकी लीव्स होती है ना, जो ग्रीन येलो ग्रीन होती हैं, ओके, वी कीप इट इन द ऑर्नामेंट, वी कीप इट फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, ओके। जैसे क्रोटन हो गया, क्रोटन में ऑरेंज ब्राउन लीव्स होती हैं, रेड लीव्स होती हैं, येलो ग्रीन लीव्स होती हैं। तो ये जो येलो ग्रीन कलर आया ये किसकी वजह से आया है? क्लोरोफिल बी, ठीक है। देन इज xanthophyll, xanthophyll imparts येलो कलर, कैरोटिनॉइड इम्पार्ट येलो एंड येलो ऑरेंज कलर, और इसके वजह से ये कैरोटिनॉइड्स कहाँ पे? फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये वहाँ पे पिगमेंट देता है। बट एट द सेम टाइम कैरोटिनॉइड्स ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ओके। मैम इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? मिलता है मतलब मैम नॉर्मली प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, chlorophyll A is the Okay. abundant pigment, okay, which is mostly found in most of the plant, that will be chlorophyll A. इसीलिए डार्क ग्रीन कलर की लीव्स ज्यादा होती हैं, ठीक है, ओके। नाउ
यस ओके, ये है आप अपना जो ग्राफ है बुक का वो खोलो। ओके, सो दिस ग्राफ इज द सेम ग्राफ विच इज फ्रॉम योर बुक, थोड़ा सा कलर्ड है ये। यहाँ पे यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम, मैं इस पहले वाले डायग्राम की बता रही हूँ। ओके, जब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट गेट्स dispersed into 7 different colors. Okay, so now here the 7 different colors are shown here. ठीक है, so if we see the wavelength of light is measured in nanometer. Okay, you all know कि wavelength of light का जो unit है, जिस unit में उसको measure किया जाता है, that is nanometer. Okay, so ये dispersed light है कि जो prism से आ रही है। Okay, so when it is seen, this is the different color. यहाँ पे normally अगर हम wavelength देखें तो जो पर्पल कलर का जो कलर है उसका वेवलेंथ अराउंड 400 नैनोमीटर होता है, एंड जो 700 का जो कलर है इट मींस हियर द कलर, द 700 नैनोमीटर इज द कलर फॉर रेड। सो यू कैन, बुक आपके पास है, आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो एक ऊपर की तरफ पीक गई है यहाँ पे 400 लिख लो, और सेकंड इसके पॉइंट पे आप सेकंड तरफ पे 700 लिख लो। ठीक है, तो एक्सट्रीम एंड्स पे इट मीन्स अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो आप कौन से रेंज में टिक मार्क करोगे बताओ? मैम 400। 400 to 700. यस, यू विल मार्क फ्रॉम 400 to 700। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, ये तो वेवलेंथ हुआ जो हमारा एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे क्या है? ये दोनों तरफ वेवलेंथ है, नीचे और ऊपर दोनों वाले ग्राफ में। नाउ जो वाई एक्सिस है देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, जो ये अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये कितनी, ये कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करना क्यों जरूरी है? फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ द पिगमेंट्स डोंट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ ऑल लाइट्स, दे normally absorb the wavelength of light which is between 400 to 500 and which is between 600 to 700। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? अगर रेंज आपकी 400 से 700 दी तो आप इसमें टिक करोगे, पर हाई फोटोसिंथेटिक रेट के लिए जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो कहाँ पे देखी गई है? 400 से 500 के बीच में, और कहाँ पे? 650 से 700 के बीच में। ओके, बिकॉज हियर यू कैन सी द ग्राफ, क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन कलर से है, उसका ग्राफ आप देख रहे हो कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? इतना ऊपर एब्जॉर्प्शन चला गया है, कौन से पे? 450 के अराउंड। ठीक है ना? ओके, देन क्लोरोफिल भी आप ये देखो कि हाईएस्ट पीक जो है क्लोरोफिल बी की है अराउंड 450। ओके, और अब आप नीचे चले जाते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 400 से 500 में पीक ज्यादा जा रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है क्लोरोफिल, एंड सिमिलरली 600 से 700 नैनोमीटर्स की जब वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है तो क्लोरोफिल ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए का अलग है, क्लोरोफिल बी का अलग है, और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो येलो कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है, उसका भी यहाँ पे एक ग्राफ है लाइट येलो कलर का। ठीक है, तो ये कंपैरिजन दिया है कि कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है बाय द पिगमेंट्स। ओके, यहां से आपका दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेयर more absorption of light is seen by the chlorophyll pigment? So the answer will be between 400 to 500 and between 600 to 700. Second question is, why the color of leaf is green? Who will explain me by using this graph? इस ग्राफ को एक्सप्लेन करके कौन बता सकता है कि you have to answer the question why the color of leaf appears green in color? जो लीफ का कलर है वो ग्रीन क्यों नजर आता है मोस्ट ऑफ द लीव्स का? कौन बताएगा? जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे से 6th या 7th वाले बच्चों से पूछें कि बेटा लीफ का कलर किस लिए ग्रीन होता है, तो वो क्या आंसर देगा? उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट टेक्निकली वो गलत है। वो अभी तक हमको पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट है इसीलिए वो ग्रीन कलर है, बट अगर हम एक फिजिक्स वाले से ये पूछेंगे कि क्लोरोफिल लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है तो वो इस आंसर को गलत बोलेगा। यस, बताओ। बताऊं? ग्रीन लाइट को वो अब्सॉर्ब नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। Okay, because we are only able to see that color which is reflected by that substance.
जो लीफ है, लीफ ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करके, ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करके सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए हमको ग्रीन दिखाई देता है, जबकि रेड और पर्पल वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, उसको सबसे लीस्ट रिफ्लेक्ट करती है लीफ, इसीलिए हमको कोई भी लीफ पर्पल या रेड नजर नहीं आके वो हमें आती है ग्रीन लीफ। ठीक है ना? तो अब यहाँ से 11th क्लास से अगर आपसे कोई पूछे तो आपका इसका आंसर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, बिकॉज ग्रीन कलर इज मोस्टली रिफ्लेक्टेड एंड लीस्ट एब्जॉर्ब, क्योंकि ग्रीन कलर कौन से वेवलेंथ के बीच में आता है, 500 to 600 वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नीचे है आपका, ये तो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नीचे है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली रेट कहाँ पे ज्यादा होगा, 400 से 500, यहाँ नीचे वाले में 400 से 500 जो नैनोमीटर है वहां पे आपका वेवलेंथ ज्यादा होगा as compare rate of photosynthesis will be more in 400 to 500 nanometers and 600 to 700 nanometers. Why? Because more amount of light is absorbed. जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई है उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, ये टाइम क्या हुआ, 12:41। ठीक है, so maximum absorption of chlorophyll occurs in blue and red regions having higher rate of photosynthesis. So chlorophyll A is the chief pigment. सबसे important pigment, सबसे primary pigment क्या है, chlorophyll A। ठीक है, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids are called accessory pigment. chlorophyll A को छोड़ के बाकी सारे pigments को, xanthophyll, carotenoid, they all are known as what? They all are known as the accessory pigment. इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको हम accessory pigments कहते हैं, because they help they absorb light energy and they transfer their light energy from them to chlorophyll A. इसका मतलब ये है कि ये क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटिनॉइड, ये सब के सब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये सारी अपने लाइट की एनर्जी किसको पास ऑन कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए इज प्राइमरी पिगमेंट, वेयर एज क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटिनॉइड, दे आर ऑल नोन एज द एसेसरी पिगमेंट। उन सबको क्या कहते हैं, उन सबको कहते हैं हम एसेसरी पिगमेंट। ठीक है, ओके। अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लाइट रिएक्शन है, और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अगर मैं इसको मैंने शुरू कर दिया तो ये भी एंड भी नहीं होगा। ठीक है ना, सो ओवर टू स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, आप NADPH का फुल फॉर्म बोल रहे थे ना, ये मैं लिख रही हूँ, आप नोट कर लो। ये नीचे आपको नजर आ रहा है ना, आप यहीं से नोट कर लो। NADP, निकोटिनामाइड। निकोटिन आप पहले लिखो, उसके बाद लिखो अमाइड, याद रखने का तरीका, निकोटिन अमाइड, निकोटिनामाइड। एडिनाइन, निकोटिनामाइड यहां से हुआ एडिनाइन। डी से डाई न्यूक्लियोटाइड, और पी से फॉस्फेट। ठीक है, सो ये क्या हो गया, निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। ठीक है ना, ओके। व्हेन दिस NADP बिकम्स NADPH, ओके, देन हम कहते हैं, कभी भी हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के एडिशन को वी कॉल इट एज रिडक्शन। ओके, सो यस, सो वी कॉल इट एज रेड्यूस्ड NADPH, सॉरी रेड्यूस्ड NADP। फुल फॉर्म जो है वो NADP का है ये। When hydrogen is added, we call it as reduced NADP. Okay, so it becomes NADPH. Nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate.
ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म यू ऑल नो वेल, ठीक है बेटा। सो अंडरस्टूड टुडेज क्लास? Yes, ma'am. Okay, if you have Yes, ma'am. okay, if you have Yes, any ma'am. doubt, you can ask doubt and please go through the first and second page of this lesson. आप अपने आप पढ़ना उसको, उसमें कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट के, ज़्यादा कुछ नहीं है बट कंट्रीब्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन को डिस्कवर किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है उसको डिस्कवर किया, हर एक बार एक नया नया चीज़ डिस्कवर किया, तो सबका है कैसे कैसे हर एक स्टेप पे फोटोसिंथेसिस बना, ठीक है। मीन्स फोटोसिंथेसिस को लर्न किया गया। मैम रोल नंबर 12 प्रेजेंट। रोल नंबर 12 प्रेजेंट। कौन है रोल नंबर 12? दिव्यांशु मैम शुक्ला। यस। मैं रोल नंबर वाइज दूंगी ना। ओके। So students, after giving attendance, if your roll number is over, roll call is over, you can leave the meeting. Okay, right. So today is 9th. Deepal, Present, ma'am. Edwin, Present, ma'am. Harshit, Present, ma'am. Jyoti, Present, ma'am. Praved, Present, ma'am. Ayansh Dikshit. Present, ma'am. ये अयांश दीक्षित, ठीक है। अयांश दीक्षित थोड़ा सा कम आता है ना क्लास में, बेटा आया करो। गया क्या? लीव कर दी उसने क्लास? मैम मैंने सैटरडे से रेगुलर कर दिया है मैम। हाँ हाँ, नहीं मैं देख रही हूँ, आप 5 से आ रहे हो ना शायद रेगुलर। यस मैम। ठीक है, तो 1/3 आपकी अटेंडेंस है। ओके, तो अयांश दीक्षित की हो गई अटेंडेंस। देन दीपांशी, रोल नंबर 10। Present, ma'am. रोल नंबर 12। प्रेजेंट मैम। 18, प्रेजेंट मैम। 20, Present, ma'am. 24। Present, ma'am. तामिद अली आ गए आप? चलो अच्छी बात है। ओके, 25 संजना। Present, ma'am. 28 तेजस्वी। Present, ma'am. ओके, और कोई इसके अलावा कोई प्रेजेंट था जो जो बीच में से निकल गया हो? Saloni. हाँ, सलोनी। Saloni. सलोनी रोल नंबर 7। ओके, एनीबडी एल्स? मैम आपके एक बार वापस बता सकते हो NADP से NADPH कैसे बनता है? अच्छा देखो, NADP से NADPH ऐसे बनता है कि पहले तो जो ATP और NADP हैं वो हैं क्या? दे आर एनर्जी पैकेट्स, ओके, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आधे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लाइट में होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, और जो अदर हाफ है वो लाइट के एब्सेंस में होते हैं। तो जो लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं। उसमें 2 एनर्जी के पैकेट्स बनते हैं, एक ATP और एक NADP, ठीक है ना। अब ये जो NADP है, जब इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है, हम कभी भी हाइड्रोजन के एडिशन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो पैकेट ऑफ एनर्जी तो आपका NADP ही है, पर अगर उसको कहीं से प्रोटॉन मिल गया, अभी हम देखेंगे प्रोटॉन्स कहाँ से आए, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि प्रोटॉन्स कहाँ से आए सिस्टम में। So when they get hydrogen, when this energy packet NADP get hydrogen, it becomes reduced, okay, and we call it as reduced NADP. ठीक है बेटा, clear है? Yes, ma'am. Okay. Thank So you, bye ma'am. students, you can leave the class.